Hi, hello everyone. We finished our first four chapter in the last lecture. Okay, now the fifth unit is all about the functions in C. Huh? So, we have already seen what are the functions which we can use in C program, and we used a lot of function means the every each and every C program consists at least one function which is main function int main function जो हम लोग ने लिखा है या फिर void main function लिखा so that those parentheses those square bracket is nothing about our functions ठीक है but in this chapter we are going to see the detailed concept of functions in C and uh, how the function plays the vital role in our C program. So let us start with the concept of function in C program. Okay, C functions. यहाँ पे देखो टॉपिक का नाम है C functions. So a function is a group of statements that together perform a task. Means it is the bunch of statements within the curly braces जो हम लोग ने लिखा था and within that curly braces we write something we write one statements we write group of statements which together perform a specific task. Addition function है तो वो addition perform कर रहा है, subtraction है subtraction कर रहा है, for का एक जो लूप वाला फंक्शन है वो भी फंक्शन के बॉडी में ही लिखा था हम लोगों ने राइट while लूप है so those are the group of statements which together can perform a particular task and every C program has at least one function अभी मैंने बोला which is main function and which is the entry point of each and every C program and all the most trivial programs can define additional functions. Okay, so you can divide up your code into separate functions. How you divide up your code among different functions is up to you. So if you want to जैसे कि हम लोग ये एग्जांपल स्टार्टिंग से ले रहे हैं सो इफ यू वांट टू क्रिएट वन कैलकुलेटर एप्लीकेशन सो you divide your C program in four different functions. First is for addition, फाइव टोटल फाइव हो गए वो पहले तो मेन फंक्शन उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ठीक है बट लॉजिकली द डिवीजन इज सच दैट each function performs a specific task. So logical division में क्या हो रहा है each function performs specific task like addition perform कर रहा है to add two numbers. Subtraction में क्या हो रहा है to subtract means the function body is same, the parameter is same, but the nature is different. Okay, so a function declaration tells the compiler about a function name. अभी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं डिक्लेरेशन मतलब उसे डिक्लेयर करना कैसे बनाना है क्रिएट कैसे करना है सो इट सिंपली टेल्स अस द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम जैसे कि एडिशन है सब्ट्रैक्शन है मैं ये सिर्फ रिजल्ट फंक्शन हो सकता है एम्प्लॉय फंक्शन विच एवर फंक्शन यू कैन क्रिएट इन यूर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गए और जो लाइब्रेरी फंक्शन जैसे कि मेन फंक्शन है उसके बाद बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है सो वो देखते हैं वो आगे आने वाला है ये चैप्टर में बट you can means the function declaration tells the compiler about a function name then return type okay return type means जो हम लोग उसके आगे लिखते हैं जैसे कि int main function so int is the return type and main is my function name and parameters तो parameters मतलब जो bracket के अंदर हम लोग लिख रहे हैं arguments so it does not it is not compulsory to write for each and every function and pass the parameters inside that function body. So it totally depends on you. It totally depends on the program nature. If there is a requirement of passing मतलब आपको अगर ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो या फिर एडिशन के लिए जो दो वैल्यूज चाहिए सो यू कैन पास दोज टू वैल्यूज इनसाइड योर फंक्शन पैरामीटर्स बॉडी या फिर फंक्शन parenthesis. A function definition provides the actual body of the function. Okay, the C standard library provides numerous built-in functions that your program can call. For example, strcat function. ठीक है सो ये हम लोग ने स्ट्रिंग के टाइम पे देखा था कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहा है ये वाला फंक्शन अभी ये आप लोग ने नहीं बनाया है अगर if you want to do the string concatenation task then you have to write this function as it is ठीक है this is not the user defined function this is built in by default library function यहाँ पे देखो उन लोग ने बोला भी है ठीक है so to concatenate two strings you have to write this function ये उसके बाद है मेमोरी कॉपी MEMCPY ये अब तक आया नहीं है और ये अभी हम लोग को सिलेबस में है भी नहीं इसके बारे में सोचो भी मत बट दिस इज द वो सिर्फ बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बता रहा है इसीलिए उन लोग ने एग्जांपल दिया है
So this function is used for to copy one memory location to another memory location. So memory MEM मतलब memory और CPI मतलब copy. ओके और ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा आपको बाय डिफॉल्ट, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है, उसको एज इट इज आपको यूज करना है, ठीक है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज डिफाइनिंग फंक्शन. अभी ये हम लोग को मालूम है, हम लोग ने डिफाइन, अभी हम लोग ये देख रहे हैं क्योंकि वो चैप्टर में 5th चैप्टर में उन लोग ने बोला है स्पेसिफिकली फंक्शन के बारे में. बट वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ फंक्शन, ठीक है. सो यू नो दिस स्ट्रक्चर एज फर्स्ट वी रिटर्न टाइप इंटीजर है, वॉइड रहेगा, ठीक है. नॉर्मल इंटीजर और वॉइड हम लोग रिटर्न करेंगे. देन द नेक्स्ट इज फंक्शन नेम, मेन फंक्शन, एडिशन फंक्शन, सब्ट्रैक्शन फंक्शन, रिजल्ट फंक्शन, एम्प्लॉय फंक्शन, सैलरी फंक्शन, विच एवर फंक्शन इट इज. हाँ. देन द इनसाइड द, अभी ये हम लोग पैरामीटर लिस्ट है, ये हम लोग नॉर्मली ब्लैंक ही रखते हैं, बहुत सारे फंक्शन में नॉर्मली ब्लैंक ही रहता है. एंड इनसाइड द बॉडी वी कैन राइट द पैरामीटर्स, बट यू कैन पास द पैरामीटर लिस्ट इनसाइड दिस फंक्शन पैरेंथेसिस एज वेल, ठीक है. आप लोग इसके अंदर भी लिख सकते हैं. और ऐसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम रन भी किए आई गेस फॉर लूप में. फॉर लूप ने वाइल के टाइम हम लोग ने पास किया था, ठीक है. So a function definition in a C programming consists of a function header and function body. ठीक है, ये function header है पूरी लाइन और ये है मेरी function body. हाँ, अभी inside the body you can write a lot of in number of statements, ठीक है, and together they can run as a built-in function. So here are the parts of function. अभी ये 4 पार्ट है टोटल, ये 4 टोटल पार्ट से ही मेरा फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन सी फंक्शन कंसिस्ट हो रहा है, ठीक है. सो फर्स्ट क्या है, रिटर्न टाइप, जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. सो अ फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि रिटर्न अ वैल्यू मतलब क्या, हमने कुछ तो जनरेट किया, जैसे कि a प्लस सी, हम लोग ने 3 वेरिएबल लिए, सी लिया, ए बी सी 3 वेरिएबल लिए, और ए और बी को हम लोग ने कैलकुलेट किया, मतलब उसके एडिशन के दोनों की, एंड वी स्टोर द रिजल्ट ऑफ एडिशन इनटू द सी वेरिएबल, ठीक है. सो इन दिस एग्जांपल द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू मीन्स सी में कुछ तो स्टोर है, वो रिटर्न करना चाहिए, मतलब वो रिटर्न कर रहा हूँ मैं मेन, क्योंकि ये जो अपना पार्ट है ना, ये पार्ट पूरे अपने सी मेन प्रोग्राम को भूल रहा है, मतलब मेन फंक्शन को ये पार्ट भूल रहा है, ये उसका स्कोप ये करली ब्रेसेस के अंदर ही है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू रिटर्न समथिंग टू द मेन फंक्शन. कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, ये फंक्शन ने क्या किया वो रिटर्न करना पड़ेगा. एंड टू डू दैट वी राइट द रिटर्न टाइप बिफोर द फंक्शन नेम एंड इनसाइड द फंक्शन बॉडी. क्लियर, आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जो हम लोग कर रहे थे. एग्जाम्पल के बाद और क्लियर हो जाएगा, बट सिंपली इतना याद रखो कि return type simply return the calculating value, returns the generated value, ठीक है. So some functions perform the desired operations without returning a value. मतलब बहुत सारे functions ऐसे हैं those perform the desired operations, जो body के अंदर operations है वही perform करते हैं without returning a value, वो कुछ return नहीं करते. In this case the return type is the keyword void. अगर ऐसा है मतलब means you are not returning any value towards the main function. इट सिंपली मतलब वो फंक्शन को हम लोग आउटसाइड द मेन फंक्शन हम लोग कॉल करने वाले हैं और वहाँ पे रिजल्ट जनरेट होने वाला है, ऐसा सीन है. सो वही टाइम पे आप लोग वॉइड लिखने वाले हो, जो मैंने बताया था कि मेन फंक्शन के लिए कभी भी वॉइड नहीं लिखना चाहिए, इंट ही लिखना चाहिए, बिकॉज वी रिटर्न समथिंग टू द मेन फंक्शन. सो दैट्स वाई यू कैन यूज द वॉइड if and only if the function returns the null value, the function returns nothing. Huh? On that case you can use the void keyword as a return type. Okay, then the next is function name. This is the actual name of the function name and the parameter list together constitute the function signature. ठीक है, सो फंक्शन नेम क्या है और उसके पैरामीटर लिस्ट, मतलब फंक्शन नेम एडिशन और पैरामीटर में मैंने पास किया 1 और 2, सो वो दोनों एक सिग्नेचर जनरेट कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शन. The next is parameters. Okay, so parameter is like a placeholder. When function is invoked you pass a value to the parameter, int a comma int b ऐसे मैंने पास कर दिया और I can use those value inside the function body. So parameters are nothing about the arguments, the attributes which are useful inside the function body. Okay, this value is referred to actual parameter or argument. The parameter list refers to the type, order and number of the parameters of function. Parameters are optional, that is a function may contain no parameter. Means हम लोग ने सपोज अब तक
30-40 प्रोग्राम देखे, इतने 20-25 तो देखे होंगे. सो आउट ऑफ दोज 20 to 25 programs, almost we write the 15 programs without any parameters, means we simply pass the parenthesis as by default constraint. ठीक है, जो नॉर्मल ब्लैंक कंस्ट्रेंट हम लोग ने पास किया एज अ पैरामीटर के तौर पे. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट, क्या बोलेंगे उसे, द लास्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन इज फंक्शन बॉडी. Okay, so it contains a collection of statements that define what the function does. So it will basically tells user that what he or she is going to perform. This is the actual task of C program, which we will return inside the function body. ठीक है. So given below is the source code for a function called max. अभी यहाँ पे देखो, ये एक source code है और फंक्शन का नेम क्या है, मैक्स. दिस फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स, ये 2 पैरामीटर भी ले रहा है क्योंकि इनसाइड द फंक्शन हम लोग ने वो लिखे है num1 एंड num2. ठीक है, मैक्स मतलब हम लोगों को पता है, चल ही गया होगा नाम से, मैक्स मतलब मैक्सिमम. सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यू हैव टू फाइंड द विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज मैक्सिमम. सो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल मैंने बनाया फंक्शन बॉडी के अंदर रिजल्ट नाम का, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी num1 अगर ग्रेटर है num2 से तो रिजल्ट क्या आने वाला है num1. एल्स रिजल्ट क्या आने वाला है num2. ठीक है, इतना सिंपल लॉजिक है और मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिजल्ट को. ठीक है, सो ये रिटर्न कर रहा हूँ इसीलिए मैंने रिटर्न टाइप लिखा इंटीजर. इफ आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग सो आई कैन राइट द वॉइड हियर. और ये फंक्शन नेम है और ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट है या फिर पैरामीटर है और ये है फंक्शन की बॉडी. क्लियर? ओके, अभी फंक्शन डिक्लेरेशन. अ फंक्शन डिक्लेरेशन tells the compiler about a function name and how to call the function. अभी फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब वो कंपाइलर को बता रहा है फंक्शन का नाम क्या है और उसे कॉल कैसे करना है. दैट्स इट. द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली. मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि बॉडी किसी और जगह पे डिक्लेयर की है और हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं किसी और जगह या फिर किसी और फंक्शन में. वी कैन डू दिस स्टफ इन सी प्रोग्रामिंग, इन C++, इन जावा, इन एनी प्रोग्रामिंग. ठीक है, so that is the beauty of programming language. You can write one thing at one another function and you call them it on the another function. So a function declaration has the following parts. कैसे declare करना है, सेम है, return type, function name, parameter list, semicolon. If and only if you didn't want to explore those function inside this particular function. अभी ये भी मेन फंक्शन के अंदर होगा. ठीक है, और आप लोग को मेन फंक्शन के अंदर अगर इसको डिक्लेयर नहीं करना है, डिक्लेयर नहीं, इनिशियलाइज नहीं करना है, सो यू सिंपली डिक्लेयर यूजिंग दिस सिंटैक्स. रिटर्न टाइप लिखो, मतलब इंट, उसके बाद क्या है फंक्शन का नाम मैक्स एंड पैरामीटर लिस्ट, इंटीजर ए इंटीजर बी. ठीक है, और उसके बाद हम लोग दूसरे कोई फंक्शन में या फिर विद इन द सेम फंक्शन यू कैन इनिशियलाइज दोस फंक्शन बॉडी एज वेल. सो फॉर द अबव फंक्शन मैक्स द फंक्शन डिक्लेरेशन इज, यहाँ पे देखो इंट मैक्स नंबर और num2 किया है उन लोग ने एग्जांपल. ओके, सो पैरामीटर नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन फंक्शन डिक्लेरेशन. जो ये है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओनली देयर टाइप इज रिक्वायर्ड. जो टाइप है रिटर्न टाइप इंट, ये रिक्वायर्ड है. सो द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ वैलिड डिक्लेरेशन. ओके, मतलब यहाँ पे देखो उन लोग ने बोला कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है num1 और num2, सिर्फ आप लोग ने इंट लिखा तो भी वो बहुत काफी है. So function declaration is required when you define a function in one source file and you call that function in another file. जैसे मैंने अभी बोला, एक सोर्स फाइल में आप लोग ने डिक्लेयर किया और दूसरे सोर्स फाइल में एक्टिवेट कर रहे हो, यू कैन डू दैट. इन सच केस यू शुड डिक्लेयर द फंक्शन एट द टॉप ऑफ द कॉलिंग फंक्शन. सो आप लोग सिर्फ ऐसे डिक्लेयर करो और यू कैन इनिशियलाइज दोज फंक्शन at some different source file. Clear? So I hope you get the basic idea of what is function and the need and importance of function in C program. ओके, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो उसके टाइप है, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वो देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.